हम लोग सिस्टर डेनिस के मुरली नोट्स बुक से पढ़ रहे चैप्टर 7 ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस इन इंडिया originate in the relationship between souls and God at the time of the Confluence Age. In this Murli, as in many Murlis, Baba is showing a particular kind of logic that he uses to prove himself. It seems that in the Copper Age, the practices of Hinduism that were emerging involved replicating the relationship between God and souls in the relationship between men and women through the social systems of marriage, children, and all the social customs. All the social customs were copies of how God had related to souls in the Confluence Age. Baba also gives indicators that when it became the Iron Age, those copies were reversed or inverted. तो जो भी हमने कॉन्फ्लुएंस एज में किया है, बाबा के साथ जो संबंध जोड़ा है, जैसे एक्ट किया है और जो भी सीखा है, अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, धारणा किया है, वो रेप्लिकेट करता है कॉपर एज में और फिर धीरे धीरे वो एडल्टरेट होके आयरन एज तक रिवर्स हो जाता है. In this Murli, you can see how this operates. Baba takes up the practice of the marriage ceremony in Hinduism, in which the fall part of the sari, the pallu, that is draped over the shoulder of the woman, is tied to the scarf of the groom. Hindus generally wear shawls or some piece of fabric that is draped. Baba says, at this time, the draped part of your sari is tied to God. That is symbolic of your dedication to Him. And in exchange, He takes care of you completely. Often Shiv Baba says He is the bridegroom, and all the souls are brides, whether one is a female or a male in this life. You connect yourself to God instead of becoming part of the existing system of society. You break from the existing system of society in certain ways, and you fulfill conventional social systems and certain other ways. तो कॉन्फ्लुएंस एज में हम लोग बाबा के साथ कर्म बंधन में आते हैं, बाबा के साथ बंध जाते हैं, और जब बाबा के साथ एक संबंध जुड़ जाता है तो फिर उस समय बाबा जो कहते हैं, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, उसके हिसाब से हम हिम्मत रख के चलते हैं. और दीदी मेरा एक क्वेश्चन है आपने. हाँ. अभी आपने कहा कि कर्म बंधन में बनते हैं, हम्म. और एक बार को हम ये बोलते हैं कि बाबा जो है वो इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस से बाहर है. हाँ. तो फिर कर्म बंधन क्योंकि कर्म योग करते हैं ना हम, कर्म योगी होने के कारण जब कर्म योगी है तो वो बाबा के साथ, बाबा को साथ रख के हम कर्म करते हैं. तो यहाँ पर बाबा के साथ बंधन होता है, बाबा के साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता है और सबके साथ चुकतू होता है. आप एक बार चर्न करना इसके ऊपर, क्योंकि जब हम संबंध, किसी से भी संबंध जब जुड़ते हैं, कोई भी संबंध हो, चाहे देहधारियों के साथ भी जुड़ते हैं, तो कर्म बंधन में आते हैं हम. कर्म बंधन या कर्म संबंध है ना. तो वैसे बाबा के साथ अब हम हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे बाबा को हम बीच में लाते हैं
और जब हम बाबा के हिसाब से चलते हैं, बाबा को ही जानते हैं, बाबा को ही बीच में लाते हैं, तो बाबा टेक्स केयर ऑफ अस. Right. I इसलिए want to हाँ, just add one thing. yes please. मतलब from one of the sister Dennis class, this हाँ. point, she was saying कि soul consciousness means, okay, yeah, she was saying about body consciousness and soul consciousness. Body consciousness, she was saying, when you look at the world, you perceive the world and stay in the world according to the existing system. राइट. सोसाइटी में जो बन रखा है, हाँ. जो बिलीफ सिस्टम है, ये सब. राइट. जो मनुस्मृति में भी बताया गया, उसके अकॉर्डिंग जो पूरा कलयुग बना है. और सोल कॉन्शियसनेस मीन्स दैट यू आर लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू बाबा's ज्ञान. Yes. How God is telling you Yes. to live. Yeah, so she was saying this to the difference between soul conscious and body Correct. conscious. You are staying in this world. You are in this body, but still you are following as Baba is directing you. So Baba gives the interesting point that when a wife accepts to be the life companion of her husband, it is a contract, and in return for her dedicating herself to him, he has to take care of her for her whole life. So it is good that if we can accept Baba as our bridegroom. I was having to ask the same question. Why it is always referred as a bridegroom? तो ये ब्राइडग्रूम एक्चुअली क्या है कि प्योरिटी, हमारा प्योरिटी टूटता है इस रिलेशन में ही सबसे ज़्यादा. इसलिए बाबा के साथ वो रिलेशन जोड़ के, वो ताकत भर के, वो प्योरिटी को मेंटेन करने का, वो प्योरिटी को अंदर में लाने का, वो जो जैसे मानसी बहन ने रेफ़र किया है कि सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, क्योंकि जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक हम बाबा से नहीं जुड़ पाएंगे और बाबा के डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे. तो सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हम स्लिप हो जाते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो फिर इम्प्योरिटीज़ आने लग जाते हैं. तो ये तरीका है और ये बाबा यहाँ सिखाते हैं, और यहाँ वाले बात ही वहाँ जाके रेप्लिकेट करता है, ना कि वहाँ वाला बात यहाँ आया है. तो आप देवो बहन, आप जो पूछ रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस मुझे लगता है कि आप वहाँ वाला बात से यहाँ वाला बात को रेफ़र कर रहे हो. दैट इज़ वाई यू आर नॉट फीलिंग लाइक एक्सेप्टिंग बाबा एज ए ब्राइडग्रूम. पर एक्चुअली दिस इज़ ऑपोजिट. बाबा ने कहा है कि हर संबंध जोड़ना है बाबा के साथ, ताकि कोई भी एक संबंध का आकर्षण देहधारियों के साथ नहीं हो. और फिर यहाँ पर जब हम हर संबंध जोड़ते हैं और फिर सतयुग में जाके बाबा की स्मृति रहता नहीं है, तो धीरे धीरे वो संबंध की कमी आने के कारण धीरे धीरे वो उन रिलेशंस के साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, और वो अटैचमेंट धीरे धीरे गिराने लग जाते हैं और वो संबंध भी गिरने लग जाते हैं. क्लियर हुआ देवोबन? क्लियर हुआ. यहाँ पे मतलब हमने ब्रीफली पहले डिस्कस करा है. ये जो मतलब ये संबंध मुझे बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू इवन इमेजिन. मतलब वो रीज़न क्या है? आप पहले वो वाला संबंध, बाहर वाला संबंध को देख रहे हो. कॉपर एज से जो शादी का जो मीनिंग चेंज हुआ है, जो सेलिब्रेट रहने से वो चेंज हुआ है, सेलिब्रेसी नहीं रहा, इम्प्योरिटीज़ आ गया है, उसको आप कॉन्फ्लुएंस एज में रेफ़र कर रहे हो. पर एक्चुअली बाबा इज सेइंग कि कॉन्फ्लुएंस एज में जब बाबा को ब्राइडग्रूम बनाया
उसका रेप्लिकेट हुआ वहाँ जाके, समझ गए? जब आप उल्टा देखते हो ना कि वहाँ का यहाँ आ रहा है, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ इम्प्योरिटी है। तो बाबा को आप इम्प्योर नहीं देख पा रहे हो, राइट? पर ये बात उल्टा है। बाबा ने कहा, यहाँ दीदी ने कहा ना कि वो यहाँ की बात वहाँ रेप्लिकेट होता है, और बाबा ने मुरली में कहा है ये बात, ठीक है? आप सोचना इसके ऊपर। Baba gives the interesting point that when a wife accepts to be the life companion of her husband, it is a contract, and in return for her dedicating herself to him, he has to take care of her for her whole life. Even Hindu marriage में जब वो 7 फेरे लगाते हैं तो प्रॉमिस करते हैं, और शायद वो मैंने कहीं सुना था कि पंडित जब मंत्र पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि वाइफ की जिम्मेदारी पूरा हस्बैंड का रहेगा. It seems that the system got reversed in the Iron Age when the patriarchal system became dominant. Reason यही है. And changed the custom such that the girl has to look after the husband for the whole of his life. If he dies before her, then she might get completely discarded, or her son might take responsibility for her well-being, or he might not. तो धीरे धीरे बहनों को पीछे किया गया है, बहनों को वो स्लेवरी स्टेट में लेकर गया. According to the laws of Manu, the Manusmriti, a man should marry a girl who is 1/3 of his age. This is the origin of the system of child marriage. Another aspect of the origin of child marriage is that at the confluence age, God accepted a woman who is completely pure virgin as a dedicated Brahma Kumari. Although he also accepted a woman who was already married but decided to live a life of celibacy and be dedicated to God, which was called a half Kumari, Adhar Kumari jo bolte. The Hindu systems of the Iron Age did not take this into account. The Manusmriti encourages marriage to a girl before puberty and before the breaking of the hymen as a proof of her virginity. This Murli takes up the ritual of marriage using a thread. One aspect is the shawl, and the thread refers to something different. When people do astral projection, they have a silver cord which ties the astral body to the physical body. If that cord is broken, then the person cannot return to their body and they die. Our relationship with Shiv Baba is on the level of the soul, the subtle body, and the physical body. The silver cord, a string, is mentioned sometimes in the BK world. When people would go in trance and they would go to Baba, they would talk about Baba pulling the string and bringing the soul in their subtle body up to the subtle regions through the use of the string. तो संदेशी कई बार कहते हैं, ये वर्णन करते हैं कि बाबा ने डोर खींच लिया. This string is symbolic of your life because this is what ties the soul to the body through the subtle body. Now you are tying the string of your life to Shiv Baba. That means you have created a contract in which you dedicate yourself to him for your entire life, which implies that you follow his instructions. तो वैसे ही जब कॉपर एज से वहाँ शादी होते हैं तो हस्बैंड जो कहते हैं वाइफ वही करते हैं.
उनके हिसाब से इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वही करते हैं, अपना बुद्धि लगाते ही नहीं है. In return, he dedicates himself to you and not just for this life. When your relationship with God in the confluence age is total, it remains total for the whole of the cycle, that he takes care of you for your whole existence through the whole cycle of 84 births. तो पूरा साइकिल हमारा ध्यान रखते हैं. तो अभी बाबा के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना कितना इम्पोर्टेंट है. अगर पूरा साइकिल हमें भगवान हमारा ध्यान रखे तो. He talks particularly of the inheritance of constant happiness for 21 births. Even in the copper and iron ages, the soul becomes a devotee and continues to experience the protection and support of God even until the last life. Baba says there is a great advantage to getting yourself married to God in this way. So marrying means what? Marrying means to get combined, to get tied up. पर दुनिया में इम्प्योरिटी के हिसाब से मैरिज को रखा है. संबंध जोड़ते हैं बट थ्रू इम्प्योरिटी. पर बाबा के साथ मैरिंग मीन्स टू गेट टाइड अप. दीदी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है. जैसे कि प्रॉपर से जब मैरिजेस हुई तो बोला कि आपको अपने पति की ही माननी चाहिए और पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी को संभालना. तो क्या ये संस्कार हम अभी लेके जा रहे हैं कि बाबा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस एंड ही विल टेक केयर ऑफ अस, या फिर हम अपने दिव्य बुद्धि से समझ भी रहे हैं सारी बातों को? अभी तो हम दिव्य बुद्धि से समझ रहे हैं क्योंकि बाबा जो भी कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बाबा के वर्ड्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला होते हैं. तो हमारा बुद्धि इतना वो इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए वो मुरली चर्निंग ही हमें हेल्प करता है. राइट. समझ बढ़ाते हैं. पर वहाँ पर उसका रेप्लिकेट होता है और वो रेप्लिकेशन के हिसाब से वो वहाँ तो सेंस परसेप्शन द्वारा ही रेप्लिकेशन होता है. राइट. वहाँ कॉपर एज से सोल कॉन्शियसनेस नहीं है. इसीलिए बाबा सतयुग त्रेता के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि सतयुग त्रेता के लिए वो रेप्लिकेशन इतना नहीं था, क्योंकि सोल सारे सेम लेवल के थे. सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी आया नहीं था. राइट. पर कॉपर एज से हाँ दुख भी नहीं था. तो पर कॉपर एज से वो डिफरेंस आने लग गया. इसी वजह से वो यहाँ वाला बात रेप्लिकेट कर रहा है वहाँ. ओके. है ना. क्योंकि हाँ हमें बाप समान बनना है. हाँ बट जब बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को बांध लो अपने, मतलब एक डोर में बांधो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाबा सुपीरियर और हम इंफीरियर है. बाबा तो हमें बाबा सुपीरियर, हम इंफीरियर. बाबा का वो स्टेट नहीं है. बट एक्चुअली हम अगर सोचे बाबा के इंटेलेक्ट के लेवल में तक हम अभी पहुँचे नहीं. राइट. पर बाबा कहते हैं कि बाप समान बनो. जब बाबा कह रहे हैं कि बाप समान बनना है, दैट मीन्स वी आर नॉट बाप समान राइट नाउ. राइट. राइट. तो डेफिनेटली हम बाबा जैसे नहीं है अभी. बाबा का मीनिंग ये नहीं है सुपीरियर इंफीरियर वाला. बट हम बाबा जैसे है भी नहीं. राइट. और टोटल कॉन्शियसनेस भी नहीं है, सेंस परसेप्शन को यूज भी करते हैं. मतलब करेक्ट. और दीदी अब मैरिज को हम देखने जाएं तो मैरिज इज अ 1-to-1 रिलेशन. राइट. मतलब बाकी सब रिलेशन में many to one और 1 to many होता है. कहीं मतलब बच्चे और बाप का है तो अगर 2-3 बच्चे हैं तो अगेन दैट इज नॉट 1-to-1 स्पेसिफिक.
बट मैरिज में हस्बैंड वाइफ का 1-to-1 होता है जनरली, है ना? तो बाबा भी हमें बोलते हैं कि और किसी को याद नहीं करो, सिर्फ एक बाप को ही अपने Yes. दिल में रखो. एंड मतलब बाबा, इफ यू लुक इन दैट वे, बाबा इज वेरी पॉजिटिव अबाउट यू. He just want you, सिर्फ बाबा ही होना चाहिए, और कोई चीज और कोई इंसान कुछ भी नहीं होना चाहिए. और वही चीज हम देखने जाए तो जैसे मेन डोमिनेटिंग, तो वो लोग भी ऐसे बहुत अधिकार रखते फीमेल्स के ऊपर. यू नो, यू आर जस्ट माइंड. Correct. You cannot go, you cannot even look at some other male or something like that. तो बहुत, आई थिंक वहाँ पे एक राइट होता है एक दो के ऊपर बहुत ज्यादा, और हमारा भी बाबा के ऊपर बहुत राइट है, हमारा बाबा का हमारे ऊपर, हमारा बाबा के ऊपर, राइट. एंड और एक इसीलिए belonging. इसीलिए शायद वहाँ पति को भगवान भी कहते हैं, हाँ, है ना? यस. आई थिंक बाबा ने हमें अभी मुरली में या कहीं तो आया था कि ये जो शरीर है, सॉरी, आत्मा मेल है, राइट. और अगर हम ये देखने जाए तो सारी आत्माएं फीमेल है और बाबा इज द ब्राइडग्रूम मेल. यस यस. सो इन दैट वे, और हम जब बिलोंग करते हैं, बाबा से शादी हो जाती है तो वी बिलोंग टू बाबा, and he totally takes our responsibility fully. So I think that is like more on considered ki female or male, to Correct. baba or yeah. तो दीदी, इसमें जो अभी ये जो भी अभी इवॉल्व हुआ है मैरिज का, मतलब विथ कॉर्पोरेट्स, मीनिंग ऑफ मैरिज ऑफ टू सोल्स getting married, all this evolved from the starting point of Baba and us, and then got diluted and that got evolved to two souls. Yes. And this Baba taking care of us even till the last, मतलब 21 Janam is what got evolved as सातों जन्म and whatever what not. I agree with you. हाँ, करेक्ट. अभी देखिए, एक ब्राइड ग्रूम का कितने सारे ब्राइड्स, ये एक यूनिटी है, पर कॉर्पोरेट से क्या हो गया, डिवाइड हो गया सब. एक के साथ एक ही है, मतलब एक ब्राइड एक ब्राइड ग्रूम, एक ब्राइड एक ब्राइड ग्रूम, सारा डिवाइड हो गया है. और फिर डिवीज़न होते होते फिर वहाँ पर वो एटलीस्ट इतना वो था कि वन हस्बैंड और उसी का ही एक वाइफ का वो है. पर धीरे धीरे वो होते होते फिर मल्टीपल हस्बैंड्स भी होते हैं, मल्टीपल वाइफ्स भी होते हैं, ये सब भी हुआ है. और फिर हाँ, फिर वो मैरिज की ज़रूरत ही नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप शुरू हो गया है. तो कितना चेंज होते गया है, जितना इम्प्योरिटीज़ आया. But the शादी है that started from the first birth only, right? यस. पर वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं था, राइट. वो रिलेशन के हिसाब से नहीं था कि ये मैरिज और ये मैरिज हुआ और दिस माय हस्बैंड, हस्बैंड हैज़ टू टेक केयर ऑफ मी, ये सब चीज़ें नहीं था सत्युग त्रेता में. मैरिज होते थे बट रिलेशन इक्वलिटी, वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट था ना, तो फिर वो सेम लेवल वाला सोच था सबका. समझ गए? So he talks particularly of the inheritance of constant happiness for 21 births. Even in the copper and iron ages, the soul becomes a devotee and continues to experience the protection and support of God even until the last life. Baba says there is a great advantage to getting yourself married to God in this way. But there is severe opposition from Maya, which makes you careless, and then you break your contract with God. Thus you cease to qualify for the benefits. Then Baba turns to Lakshmi and Narayan. The proof of their status of being Lakshmi and Narayan is that in their previous birth, in the confluence age, they had tied the thread of their lives to God
and received that inheritance for 21 births. Each cycle, you dedicate yourself to God, you give your life to God, and He gives Himself to you. Then he takes up another practice of bhakti, which is the celebration of the birth of Shiv, the festival of Shivratri. On the one hand, they celebrate that birth, and on the other hand, they say he is nameless and formless. Baba says, if you celebrate the birth of Shiv, it proves that he incarnates. Legally, the proof of someone's existence is their birth certificate. There are some traditions in India of not registering the birth of a female child, thus rendering her legally non-existent. The civilization of the deities called Adi Sanatan Devi Devta Dharma disappeared at the time of the small destruction, जो त्रेता और द्वापर के बीच में एक डिस्ट्रक्शन हुआ था. And all that remained were stories and legends. The stories were quite accurate at the beginning, but as the different gurus interpreted and altered them, the stories representing what really happened became progressively compromised. धीरे धीरे वो स्टोरीज क्या हुआ, किसी को स्टोरी द्वारा सुख देने के लिए कन रस सुन के रस लेने के लिए वो बन गया है, इंटरेस्टिंग बना दिया है स्टोरीज को, ताकि आत्माओं को, जो आत्माएं सुनने आते थे, उनको अच्छा लगे और बार बार आए और फिर एक इनकम का सोर्स बन जाए. Even so, there is enough remaining for Shiv Baba to take up the different legends, beliefs and practices and use them as a proof of who he is. That he does this work every cycle and with these particular souls. Once you follow his logic, you can recognize that what he says is true. Your beliefs and activities are memorials of your relationship with God in the previous cycle, and now here it is again. It is a matter of great intoxication when you realize this truth and how Baba has tied together all the loose ends. जहाँ जहाँ हम स्लिप हुए हैं, वहाँ वहाँ बाबा हाथ पकड़ के उठाए हैं, परसेप्शन चेंज किया है और हमें फ्री किया है, बोझ से हल्का बना दिया है. He talks about the Trimurti. Although the Trimurti is three, it is really only one. Brahma becomes Vishnu, Vishnu becomes Brahma. Shankar is not actually an individual, but is a representation of the bodiless stage. The bodiless stage is the vibration that sets off the destruction. The fire of destruction emerges from the sacrificial fire of Rudra, which refers to the yogis sitting in meditation, which in turn sets up that vibration. This is the origin of the Christian belief of the Trinity being three in one. The explanation of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost is inadequate, illogical, and requires blind faith. The Trimurti that Shiv Baba reveals has the representation of God above as creator of Brahma, Vishnu, and Shankar. God the Father interacts with Brahma, his son, makes him into Vishnu.
through knowledge, and the symbol of Shankar refers to his yoga by which all the impurities, sins present at the last birth of Brahma, etc. are purged. इसलिए ब्रह्मा, विष्णु शंकर ने ब्रह्मा पहले स्थापना, फिर डिस्ट्रक्शन, विनाश, फिर जाके पालना होता है. Baba gives a few details about Radhe and Krishna. Krishna is the first deity to be born. That occurs at the time of the great destruction, and then Radhe would have taken birth 2 or 3 years later. People believe that Lakshmi and Narayan were the rulers of heaven, but they do not know that Lakshmi and Narayan are the adult forms of Radhe and Krishna. They generally think that Radhe and Krishna are characters from the Copper Age. This is because they believe Krishna speaks the Gita in the Copper Age. They disconnected Lakshmi and Narayan from Radhe and Krishna, but then Baba reconnects them. Certain pivotal pieces of information had got disconnected, and when Baba reconnects them, the whole story becomes clear and makes sense. तो कृष्ण, गीता का भगवान कृष्ण बता दिया है. वो इसलिए बताया है क्योंकि कृष्ण का जो चलन है, जो ब्रह्मा बाबा का जो चलन है, वो चलन को रेप्लिकेट किया है कृष्ण में. और क्योंकि सेंसेस से परसीव करने के कारण भगवान नहीं दिख पाता है, और जो अदृश्य है उनको सत्य नहीं मान पाते हैं, इसलिए जो आकर्षित रूप कृष्ण है उनको ही भगवान मान लिया है, क्योंकि उनके अंदर ही भगवान का जो सैंपल है, जो भगवान के जो क्वालिटीज़ है, वो बाहरी रूप से चलन में दिखाई दिया था. He emphasizes that this knowledge will only be understood, accepted, taken up and applied by those who did that in the previous cycle. You who become Brahmins had become Brahmins the previous time. You are needed in the sacrificial fire of Shiv or Rudra. There is no sacrificial fire of Krishna. The result of the Gita is a huge destruction. Krishna is not known for creating huge destruction, but Rudra is. Rudra is another name for Shiv. The sacrificial fire of Rudra and the sacrificial fire of Shiv is the same one. तो रुद्र को कहते भी है रुद्र रूप, the destruction. He says he has to actually enter a human body in order to perform the ritual of establishing the sacrificial fire, which is the school of Brahma Kumars and Kumaris, where this knowledge is studied and the yoga cultivated. In that process, the thread of life of each soul is tied to the Supreme Soul for the purpose of claiming an inheritance. There is an expression which is difficult to translate into English. Baba says there are two murtis, and murti is generally translated as image or idol. But in this case, he is talking about spirits. There are two spirits in one body, Brahma Baba के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा. And when Baba used the body
use the word murti, it indicates that they are not ordinary but divine spirits. One divine being is the soul of Brahma, and the other divine being is the soul of Shiv. These two divine spirits are simultaneously using the body of Brahma. Shankar never performs any role. Vishnu is present in the golden age symbolically. The statue of Vishnu is placed at the back of the throne of Lakshmi and Narayan. But there is no actual person as Vishnu. Vishnu is symbolic of the dual form of Lakshmi and Narayan, who are equal with each other in perfection. देवोबहन समझ में आया? Vishnu is symbolic of the dual form of Lakshmi and Narayan, who are equal with each other in perfection. इसी वजह से द्वापर से वो replicate होता है. By the same logic, Baba takes up the expression hum so hum. In Christianity, there is a similar expression, I am that I am. They think it means I am God. In the same way as the Hindu interpretation of hum so hum is, I become God and God becomes me. इसलिए सबके अंदर भगवान बोल दिया है, सर्वव्यापी कह दिया. Then Hindu gurus extrapolate that the soul is the supreme soul. But it is a misinterpretation. Baba clarifies that it refers to the change that happens in the soul as you take rebirth through the cycle. यहाँ पर ये बात भी आता है, ये क्यों आत्माओं को भी भगवान समझ लिया था, या आत्मा में सबके अंदर भगवान है बोलकर सर्वव्यापी क्यों कह दिया था? क्योंकि इसी समय हम बाप समान बनते हैं, मास्टर भगवान बनते हैं, इसलिए वो रेप्लिका भी हुआ है वहाँ. कौन सा समय? कॉन्फ्रेंस एज में मास्टर भगवान बनते हैं ना हम. तो बाबा says it is predestined that all of this should happen in this way, that there should be just these few little crumbs of real information that Baba can pick up. He then explains everything in such a way that people can see the connections between their belief systems and the historical reality. तो बाबा वो बिलीफ सिस्टम का जो ऊंचा ऊंचा दीवार हमने क्रिएट किया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो तोड़ते हैं संगम युग पर. द सैक्रिफाइशियल फायर ऑफ रुद्र इनिशिएट्स द डिस्ट्रक्शन. द गेट्स ऑफ हेवन हैव टू बी ओपन्ड by the great Mahabharat war. It is paradoxical. On one hand, people want the gates to be open, but on the other hand, they do not want the great world war. It is difficult for them to comprehend the idea that quasi-total destruction gives rise to the highest heaven. They cannot conceptualize or grasp the paradox, since it is so different from the traditional narrative, but Shiv Baba explains it. तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है, जैसे ही डिस्ट्रैक्शन के बारे में लोगों को समझ में आता है, वो उनका एनर्जी लो हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नाम से ही लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, वहाँ दुख दिखाई देता है, और इसी कारण से ये बात समझ नहीं पाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन के बाद वो हाईएस्ट हेवन आने वाला है. वो लोग वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. पर हम डिस्ट्रैक्शन को साक्षी होकर देखने का ताकत अभी ही हम जमा कर रहे हैं.
डिस्ट्रक्शन को हम परिवर्तन समझ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर वो ताकत है समझने का कि डिस्ट्रक्शन के बाद हेवन आने वाला है। दीदी यहाँ पे हाँ। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जैसे कि जब हम दर्द से गुजरते हैं, एनी पेन, फिजिकल पेन या इमोशनल पेन, तो पीपल वांट्स विजडम, मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें समझ आ जाए। जैसे कोई घर में समझता नहीं है तो उनको ये चाहिए होता है कि इस सुनता क्यों नहीं है, समझता क्यों नहीं है, सुधर जाए। लेकिन sometimes when the people are not in Gyan, or sometimes they are in Gyan, then also they have to, when they don't understand, they have to go through some difficult storms in terms of paper, right? Yes. And then through that they get the wisdom. At the end of that paper, definitely there is going to be a wisdom. करेक्ट। But they don't want to pass through. उनको डर लगता है कि ये दर्द, that is also destruction, destruction Yes, of ego, yes. trauma. करेक्ट। But they don't want to pass through it. But they want इसीलिए wisdom. इसीलिए तो शंकर नाम है, क्योंकि शंकर वो बॉडीलेस स्टेट में ही डिस्ट्रक्शन होता है। बॉडीलेस स्टेट में ही आपको ताकत मिलता है उसके थ्रू पास करने का। इसी वजह से ज्ञान योग का प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। And I think जैसे जैसे हम हमारे ट्रॉमास को हील करते जा रहे हैं, मतलब उसको देखते जा रहे हैं, उससे पास होने की हिम्मत रख के विद पावर, विजडम हमें जो मिल रहा है, उससे हमारे लिए ये जो बहुत बड़ा विनाश एक्सटर्नली होने वाला है, उसके लिए भी एक हिम्मत आ रही है। Yes, कि definitely. हम रेडी हो रहे हैं, बिकॉज इंटरनल जो फेस करते हैं उससे हमें जो गिफ्ट मिल रहा है, तो वी आर रेडी कि हाँ इसके बाद भी बड़ा गिफ्ट आता है। डेफिनेटली वो करेज बढ़ रहा है ना, हिम्मत बढ़ रहा है, यस, और फियर खत्म होते जा रहे हैं, राइट। और उस समय हम फियरलेस स्टेट में होंगे। That explanation can enter your consciousness because you are given the third eye. Ravan, material consciousness, destroys the third eye, and your perception is subsequently limited only to physical things. You think of people as either males or females, and you are unable to discern the symbolic meaning of the stories associated with the rituals. कि symbolic stories जानने के लिए वो थर्ड आई की ज़रूरत है, इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, और वो इंटेलेक्ट को हम साइड ही कर देते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। Then your karma becomes counterproductive and you lose your wealth. Baba says this too is destined in the drama. Baba takes up the expression Gyan, Bhakti, Vairagya. How can you have Vairagya for Bhakti? Vairagya is always translated as disinterest, but it has a deeper meaning. It means that once you understand that Bhakti is not it, then you let go of it. जब भक्ति भटक भटक कर जब थक जाती है आत्मा, तो फिर ये समझ में आता है कि भक्ति अभी कोई काम का नहीं है, तब लेट गो कर देते हैं। वैराग्य इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एन इमोशन दैट ऑकर्स इन समवन व्हेन दे रियलाइज दैट व्हाट दे थॉट वाज रियल इज नॉट रियल, और व्हाट दे थॉट वाज इम्पॉर्टेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. It is more of an experience of total disillusionment that causes you to give up what you thought was real. Then you can recognize and act according to the knowledge which describes the reality of non-material beings and the details of the cycle which cannot be perceived via sense perception. हम शांति। हाँ बोलिए दीदी। जो वैराग्य वाला था ना, वो थोड़ा समझाएं। हाँ, जैसे भक्ति वैराग्य, भक्ति के प्रति वैराग्य माने क्या है? भक्ति करते करते एक समय आता है जब लगता है कि किए जा रहे पर कुछ मिल नहीं रहा है। एक्चुअली आत्मा का वो
सर्च रहता है, एक तलाश रहता है वो परमानेंट सुख का, वो रियल सुख का। इसीलिए बाबा कहते हैं जो जिसने बहुत ज़्यादा भक्ति किया है उसको ज्ञान मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भक्ति करते करते हमें वो जो संगम युग में वो अतीन्द्रिय सुख मिला था उसके सर्च में हम घूमते हैं, और वो जब नहीं मिलता है भक्ति द्वारा तब हमें ये समझ आ जाता है, एक अंदर में एक इमोशन क्रिएट होता है, वो इमोशन है वैराग्य। फिर भक्ति छोड़ देते हैं हम, क्योंकि वो पता चल जाता है कि ये डिसइल्यूजनमेंट है, ये कुछ काम का नहीं है, सॉरी इल्यूजन है। तो डिसइल्यूजनमेंट आ जाता है, वो एक्सपीरियंस आ जाता है। मतलब बुद्धि में जो भक्ति के प्रति एक कट्टर विश्वास होता है वो टूट जाता है, उसको टोटल डिसइल्यूजनमेंट बोला है। क्लियर हुआ? Shiv Baba says physical perception means being under the illusion that what you perceive through your sense perception is real. This has deceived you and made a fool of you. Then Baba disabuses you and you become clear and wise. Yet the force of Maya is equal to the force of God. There is a huge battle between the force of God, which includes the force of knowledge, and the force of materialism, the force of delusion. The experience of total disillusionment is very painful, जो मानसी बहन ने अभी मेंशन किया था, but it frees you from the influence of Maya, और वो स्टेट है विजडम, जो हमें हमारा बुद्धि का एक कंपार्टमेंट खुल जाता है। उसके बाद हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आता है। हाँ हाँ बोलिए। नहीं सॉरी, आप कंप्लीट करें। नहीं हो गया, हो गया। I wanted to share about disillusionment. Yes. I think before few months we discussed on this point, and I was asking you that why disillusionment is like, what is your perspective for that? What is your understanding about that? Then you shared that it's not very painful for you. At that time you shared that, right? And at that time it was very painful for me. Okay. तो अभी जो स्थिति मेरी चल रही है और whatever papers I'm going through, I'm feeling disillusionment is not painful when you are with Baba, when you have connection with Baba, Right. because his power is so मतलब इतना power देता है बाबा आपको, इतना support देता है, and when you are with ज्ञान specifically with the wisdom, वो disillusionment ऐसे ही चला जाता है, आता है, pain होता है, and you have the power, you know what to do, right? Correct. और जब नहीं होते बाबा हमारे साथ तभी भी डिसइल्यूजनमेंट तो होता ही है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन वो उसको ट्रॉमा लेके रखते हैं, है ना? जैसे किसी की डेथ हो जाना, या जैसे कोई चीट कर रहा है आपको, वो आपको पता चल जाना, तो बहुत बड़ा दर्द होता है वहाँ पे, रियलिटी जानते जब हम, बट वहाँ पे बहुत ट्रॉमा रहता है, क्योंकि उस समय हम सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं, उस बात को नॉलेज द्वारा देख नहीं पाते हैं, इस वजह से वहाँ पर हम ट्रॉमा ले लेते हैं। पर जब बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं तब हम सोल कॉन्शियस स्टेट में होने के कारण हम वो थर्ड आई से, वो नॉलेज के आँख से देख पाते हैं, और वहाँ पेनफुल नहीं होता है फिर। राइट, आई थिंक ट्रॉमा नहीं ले रहे हैं हम, और हम वहाँ पे बाबा की विजडम को यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो इस दुनिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस चीज को हैंडल करना, राइट? हाँ। द ब्लेसिंग, बाबा कंटिन्यूज विद द आइडिया। हाँ बोलिए। डिसइल्यूजनमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? डिसइल्यूजनमेंट मतलब जो इल्यूजन में फंसे हुए हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स में फंसे हुए हैं, जो पास्ट फॉल्स एक्सपीरियंसेस को हम पकड़ के रखा है ना? बिलीफ सिस्टम। हाँ, वो ऐसे हो जाता है कि वो ब्रेक होता है,
है ना, वो है डिसइल्यूजनमेंट, और वो ब्रेक होता है ज्ञान से। जैसे नहीं, पहले कोई बताता है तो जैसे भी समझ आप में आता है। पहले आप जानते थे ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये पता था, राइट। अभी आपका डिसइल्यूजनमेंट हुआ है कि सारे तो आत्माएं हैं, माँ फिर बाप भी भाई इजी बहन था, कोई नहीं। हाँ, फिर भी ये इजी था। डिफिकल्ट वो था कि जब अपना ही बिलीफ सिस्टम कुछ था, फिर हाँ, जब आपने समझाया कि ये आपने क्यों किया या इसके पीछे क्या वो है, वो वो जब टूटा तो तब मेरे को ऐसा लगा था कि आई डोंट हैव अ बेस ओनली, आई डोंट हैव एनी बिलीव ओनली, वेयर डू आई स्टार्ट। क्योंकि एवरीथिंग इज, हम दुनिया में जैसे हमने देखा है, जैसे ग्रो किया है, ये सब कुछ एक्चुअली उसी हिसाब से हमने मान लिया है और उसी हिसाब से हमने पकड़ के रखा है, समझने की कोशिश नहीं किया। तो जब वो पेपर्स द्वारा होते हैं डिसइल्यूजनमेंट, तब जाके हम सोचने में मजबूर होते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई पेन नहीं आता है, पेनफुल सिचुएशन नहीं आता है, तब तक हम सोचते नहीं हैं। हम बहुत इजीली ले लेते हैं, उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो इसी कारण से माया आना बहुत ज़रूरी होता है, पेपर्स आना बहुत ज़रूरी होता है। माया आना माना माया एंट्री कर जाता है जहाँ पर हम वल्नरेबल होते हैं, और फिर पेपर्स आते हैं, और पेपर्स आते ही हमें हमारा वो डिसइल्यूशनमेंट होता है। डिड यू गेट मी? I get you. I have a question from the book only, but after you finish it, then I will tell you. Okay, fine. The blessing. Baba continues with the idea of the limited and the unlimited household. One household is your relationship with your body and your life. Stay beyond that pull so that your thoughts, words, actions, relations, and connections are balanced and accurate. Then you will be successful. There is an expression, greater success with less expenditure. कम खर्च वाला नशीन, कम खर्च वाला नशीन. Often people apply their time, energy, and physical resources but do not get success. This is because they did not get that moment of insight that enables one to be completely disillusioned and gain clarity. तो वहाँ पर टाइम, एनर्जी और फिजिकल रिसोर्स वेस्ट जाता है. द स्लोगन. दीदी इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं. हाँ बोलिए. ये जो पॉइंट है ना कि कम खर्च वाला नशे, और फिर दीदी ने बोला कि often people apply their time, energy and physical resource but do not get success. This is because they did not get that moment of insight that enables one to be completely disillusioned and gain clarity. And what is the relation? What is the relation means? What is the relation with कम खर्च वाला नशे and disillusionment? हाँ, तो ये जो दीदी ने कहा ना, टाइम एंड ऑफन पीपल अप्लाई देयर टाइम, एनर्जी एंड फिजिकल रिसोर्सेज, सक्सेस पाने के लिए बाहरी रूप से ये खर्च करते रहते हैं, एनर्जी देते हैं. सपोज कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और वहाँ पर आप टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, फिजिकल रिसोर्स दे रहे हो, so that you get, because your expectation is that you should get promoted, right? तो वहाँ पर हम देते रहते हैं. बट एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है कि यू नीड टू बी बैलेंस्ड. जैसे पहले बोला है ना दीदी ने, बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट. तो जब हर तरफ आप बैलेंस्ड रहते हो तब आपका सक्सेस आता है, क्योंकि जहाँ बैलेंस्ड रहते हो तो तब आप उस समय में कौन सा मैसेज मुझे मिल रहा है उस पर फोकस कर सकते हो. डिसइल्यूशन
मेंट के थ्रू पास कर सकते हो और क्लैरिटी ला सकते हो। ओके और एंड द स्थूल रूप में जो प्रमोशन है वो ऑटोमेटिकली आता है। उसके लिए आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, टाइम, एनर्जी, फिजिकल रिसोर्स देने की ज़रूरत नहीं होता है। ओके आज एक पॉइंट था मुरली में, एक सेकेंड, पॉइंट ये था, भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता, राइट? यस, हाँ। तो जब हम, जैसे मुझे प्रमोशन चाहिए और मेरे बुद्धि में एक वो है कि मतलब मेरे अंदर ना एक वो होता है ना बिलीफ, मुझे प्रमोशन क्यों चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये होगा, एक ड्रीमिंग होता है, यू नो, इल्यूजन, जिसे पूरा daydreaming illusion बोलते हैं हम। हाँ, पूरा इसके illusion। बाद ये होगा, मुझे घर बना ले, मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ आगे का नहीं, पास्ट का भी होता है। पास्ट का कैसे? पास्ट का ये होता है, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत आपका हुआ होगा कि आपने किसी को देखा है प्रमोशन होने से ये हुआ है, देन ओनली यू कैन बिल्ड अप दोज ड्रीम्स, राइट? यस, या करेक्ट करेक्ट। फ्यूचर का थिंकिंग हमारा बेस्ड ऑन पास्ट ही तो होता है, हाँ, है ना? राइट। तो राइट, तो जैसे वहां पे ना एक पेशेंट होता है, मतलब अंदर से एक डिजायर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, आई वांट दैट। तो इस हम बोलते हैं ना कि भक्ति की जैसे आग लगी हुई है, देयर इज स्ट्रॉन्ग डिजायर इनसाइड द सोल। वो बहुत बड़ा आग है। हाँ, और दैट इज आउट ऑफ इल्यूजन। डेफिनेटली, क्योंकि ये डिज़ायर क्रिएट हुआ क्योंकि आपने जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, देखा है, सेंसेस द्वारा अनुभव किया है, वो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया है। दैट इज़ वाई वो दैट डिज़ायर कम्स, क्योंकि यू नो दैट इट विल हैपन। तो हमारे सारे डिजायर्स उसी के बेसिस पे होते हैं, राइट? राइट, जो भी हमारे अंदर इच्छाएं होती है, तो बाबा बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। यस। So that also happens out of disillusion. डिसइल्यूशन, नो, इल्यूजन, आउट ऑफ इल्यूजन। हाँ, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होता है जब हम डिsillusioned होते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है अब मुझे। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई मेरे दिमाग में। डेफिनेटली। हाँ, ओके, थैंक्स। आई थिंक उसके बाद हमारे अंदर क्लैरिटी आता है, और क्लैरिटी आते ही हम सही कर्म करने लग जाते हैं। यस, क्योंकि डिसइल्यूशन जब होता है ना, सारे इम्प्योरिटीज टूटकर अलग हो जाते हैं और आप वो प्योर स्टेट को महसूस करते हो, और वो प्योर स्टेट में वो जो नॉलेज, वो क्लैरिटी एक्सपोज होता है। समझ गए? वहाँ पे लाइटनेस आ जाता है, हाँ। और वहाँ पे शीतलता आता है। हाँ, वहाँ पे दैट वो इज ए खत्म हो हायर जाती है। परसेप्शन। हाँ, वहाँ पे आग खत्म हो जाती है, वहाँ पे इच्छाएं खत्म हो जाती है, और वहाँ पे ना इतना कामनेस होता है, और फिर आपको जो चाहिए था वो मिल भी जाता है। करेक्ट, क्योंकि वो इनर कोर, वो जो सिचुएशन है, उसका जो कवरिंग है, हम कवरिंग को देख के हम घबरा जाते हैं, कवरिंग को देख के कवरिंग को हटाने की कोशिश करते हैं, कवरिंग पर ही काम करने की कोशिश करते हैं, बट उस कवरिंग के अंदर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए मैसेज वेट कर रहे हैं देने के लिए। वहाँ तक पहुँचना होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कवरिंग को डिस्टर्ब नहीं करके कवरिंग को हटाना है, कवरिंग पर काम नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पत्थर तोड़ने बैठ मत जाना, राइट, उड़ कर चले जाना जब ऐसे कोई सिचुएशन आता है, क्योंकि पत्थर तोड़ना मतलब कैसा होगा? इसी सीन में पत्थर तोड़ना क्या होगा? पत्थर क्या आप कोशिश करेगा? हाँ, पत्थर तोड़ना माना क्या है? पत्थर को तोड़ना इतना इजी थोड़ी है। तो आप लग रहे हो कि मुझे कैसे प्रमोशन मिले, मैं रात दिन काम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कर रहे हो, पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो, और अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, बैलेंस नहीं रख रहे हो, तो वो पत्थर तोड़ना होता है। पर उस बात को समझ के कि अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आया, यहाँ से मुझे क्या क्लैरिटी लेना है, कहाँ मेरे बुद्धि को डेवलप करना है, बात को समझकर वो लेकर जब आप चलते हो, तो फिर वो जो आग, डिज़ायर का आग, वो ठंडा हो जाता है,
और वो ठंडा होके वो क्लैरिटी आ जाता है। तो यही तो हम करते हैं जब हम कोई सिचुएशन आता है सामने, अगर किसी सोल के साथ हमारा ऐसे कुछ इंटरेक्शन होता है तो फिर हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपने इमोशंस को देखते हैं, क्योंकि वो इमोशंस पैदा तभी होता है जब हमारा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। और जब वो इमोशंस को फेस करने लग जाते हैं, हम अपने पावर्स को यूज़ करने लग जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वो मन शांत होता है, वो शीतलता आता है, पेशेंस रख पाते हैं हम। और फिर जाके वो एकोमोडेट, पावर टू एकोमोडेट कैसे होता है? पावर टू एकोमोडेट तभी आता है जब हमें क्लैरिटी मिलता है। विदाउट क्लैरिटी हम एकोमोडेट कर ही नहीं पाते बात को। समझ में आया? क्लियर है। इसमें इसमें सेम सीन में, ये प्रमोशन का ही सेम सीन, ऐसा पेपर आया तो उसमें आपने अपने जब समझ में आया तो अपने आप आपका जो ये डिजायर है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, मतलब बिकॉज यू अंडरस्टूड बिगर डिजायर, मतलब बिगर अंडरस्टैंडिंग, मतलब you understood your value, you understood, matlab your brain started understanding the knowledge, and this desire of promotion started becoming small. So when you when delusionment goes away, your desire goes away, or your desire you still वो फिर भी होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे प्रमोशन छोड़ दिया, मतलब उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, एंड आई एम लाइक फोकसिंग ऑन माय ओन सेल्फ, व्हिच मींस आई एम एबल टू गिव माय सेल्फ अ लिटिल मोर फ्रीडम, राइट? आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन कि अगर ऐसे एक्शन करोगे तो वो होगा, ये होगा, मतलब यू गो बियॉन्ड दैट, यस, गो पास दैट। तो आई एम सेइंग, डज योर डिजायर गोज अवे? I feel the desire becomes pure. अच्छा, There it the is desire about is, desire तो रहेगा। जैसे हमारा बाबा से मिलने का डिज़ायर रहता है, बाबा के साथ ठीक से कनेक्शन बैठे उसका भी डिज़ायर रहता है, बट दैट इज द प्योर फॉर्म, शुद्ध फॉर्म, राइट? ये शिफ्ट हो जाता है। जैसे आपने समझाया, तो जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस, लेट्स से आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग अवे, राइट? लेट्स से आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग एनीथिंग XYZ। तो जब हम उसको लेके बैठे थे तो उसको जब डाइसेक्ट किया तो उसमें देखा था इम्प्योरिटीज थे, है ना? और इंटेंशन, हाँ, मतलब इम्प्योरिटीज मतलब ऐसे थे कि एट द एंड वो कोड को अगर उसको लेयर हटा के देखा तो वो लुकिंग गुड था कहीं पे, ठीक है, किसी केस में। I would not say everything, but yes, there was looking good, right? तो अगर हम सेम वही चीज, even today, let's say you are giving, right? But you have purified your intention. Then can you still continue to give? yes, why not? So Baba is now not restricting us to do anything. Baba is giving us Definitely, Baba is proper- taking us to an unlimited state. proper knowledge to, let's say you do the same thing, but you do it in the right way. Yes, राइट? जैसे बीच में मेरे को संकल्प चला था कि विदेश जाना है, फिर नहीं, फिर चला गया क्योंकि विनाश होगा, ये होगा, ज्ञान को सही से नहीं समझा ना। जैसे जैसे वो प्योरीफाई हो रहा है तो उसी जगह के वही डिजायर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ओके, यू मे डू द सेम थिंग बट in a pure form, right? is that dispassion? Not taking energy from that situation, instead being full and performing that action, right? तब आप न्यूट्रल स्टेट में रहते हो। In the process you learn to be patient and you learn to gain courage. Then Baba does through you. You Oh. become an instrument then, Oh, right? You don't do. वो मैपन नहीं आता है फिर, करेक्ट? okay. Okay. The slogan,
Stay absorbed in the love of one. You will be so clear that the obstacles will not trouble you. obstacles ही नहीं लगेगा अगर बाबा के प्यार में रहेंगे तो, क्योंकि हर पल आपके अंदर ये फीलिंग आएगा कि मुझे तो बाबा के हिसाब से चलना है, चाहे कैसे भी विघ्न आ रहे। सपोज एग्जाम्पल देते हैं कि सबका प्रमोशन हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने बाहर से दिखावा नहीं किया, आपने बैलेंस रखा जीवन में, तो आपको दिखाई देगा कि ये लोग मेहनत किया इसलिए इनको प्रमोशन मिला है। बट आपका अगर बाबा के ऊपर भरोसा है, एक बल एक भरोसा, लव फॉर हिम, तो आप बाबा के श्रीमत को नहीं छोड़ोगे। बाबा जो मत दे रहे, बाबा जो डायरेक्शन दे रहे, उसको नहीं छोड़ोगे। और जब उसको नहीं छोड़ोगे वो ऑब्स्टेकल महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा चाहे कैसे भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी मैं बाबा जो कह रहे हैं वही करूँगी। तो बाबा भी फिर आपका ध्यान रखते हैं, ये गारंटीड है। पर कैसे रखेंगे, वो बाबा है, वो भगवान है, उनका तरीका अलग होता है, हमारे बुद्धि परसीव नहीं कर पाते। You तो most of the time we cannot perceive. हम सोचते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, बाबा कुछ और तरीका से कर देते हैं जो हमने सोचा ही नहीं है। हाँ, किसी को और कुछ शेयर करना है या डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। ये पॉइंट था इस बुक से, उसी हाँ। वही डिस्कस करना था। बोलिए। एक सेकंड। एक दीदी ने लिखा था, माया के बारे में लिखा था, एंड वन सेकंड आई वुड वांट टू रीड दैट लाइन. She says that the soul needs to recognize Maya because it is very subtle. Yes. Maya creates emotion of desire, neediness, immaturity, reactivity, and your weapon will neutralize those feelings. Then you are able to act on the basis of wisdom rather than on the basis of emotions. Yes. Which are contaminated by your emptiness, neediness, desire, and because you do not recognize this. Now my question is, and then I started thinking about, जैसे दीदी ने बोला कि माया creates emotion of desire. चलो desire को तो अभी हमने अच्छे से समझ लिया, decode कर लिया कि उसको purification and the process अभी ये क्लास में हमने बात कर लिया. Now neediness, where does the neediness comes from? What does neediness means? Like I feel मेरे में बहुत ज़्यादा neediness था पहले. Is it the neediness of this birth की यहाँ की upbringing है, या you're born as a female? What is this neediness? नीडीनेस मीन्स कोई भी सिचुएशन में जब माया आती है तो माया दिखाएगी दिस इज ए नीड, यू हैव टू डू, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये नीडीनेस दिखाएगा, और ये दिखाने से आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देने लग जाते हो। दिस इज़ ए नीड फॉर यू, जैसे नौकरी, दिस इज़ ए नीड फॉर मी, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। भले मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूं, आत्मा का ध्यान नहीं रखूं, ये नीड दिखाएगा। और फिर ये डिज़ायर और नीड, ये सब जब आता है, जब आप अपने ताकत से जो योग बल और ज्ञान बल जमा किया, उससे जब आप उस सीन से डिटैच होके देखते हो, अपनी शक्तियों को यूज़ करते हो, तब आप उसको न्यूट्रलाइज कर पाते हो, तब आपको विजडम मिलता है। वो एक बार में तो नहीं होता ना, 2-3 बार 4 बार करना पड़ता है।
जैसे आपको वो हॉस्पिटल जाना एक नीडीनेस दिखाई दिया था, राइट? कौन सा? हाँ, कि वो correct. मिलने तो जाना चाहिए ना, बट नहीं मिल के आप घर से भी उस आत्मा को ताकत दे सकते हो, वो नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि बिलीफ सिस्टम है, वो बना हुआ था। और वो सेंसेस द्वारा देखा हुआ चीज़ है, सब जाते हैं। कोई बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, बना हुआ था, राइट? इसीलिए नीडीनेस दिखाई दिया। फिर उसके सपोर्ट में वो भी दिखाएगी माया कि अगर आप नहीं जाओगे तो फिर आपके लिए भी कोई नहीं आएगा, आपका फ्रेंडशिप टूट जाएगा। तो बहुत चीज़ें दिखाती है सपोर्ट देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। और जब वो आप जब ताकतवर नहीं होते हो, तो फिर माया जीत जाती है और आपका जो बाबा के साथ रिलेशन है उसको तोड़ देती है, तोड़कर उस पल्ला को लो कर देते हैं। जो तराजू है ना, तराजू का उस तरफ का साइड जो ट्रुथ है उसको लो कर देती है, एंड यू गो इनटू द हैंड्स ऑफ रावण। क्लियर हुआ? Yeah, Devi. Thank you. थैंक यू। तो ठीक है, ओम शांति।